A lot of students ask me this question: which MBA college should I choose? Or is this B school worth joining? Honestly, many students end up making wrong decisions because they evaluate colleges based on some random things like brand name, someone's opinion, social media, some random sites through which they see their ranking. Choosing a B school is actually very strategic decision because it influences your career, your network and your opportunities for many years to come. Hi everyone, I'm Shpangi Aryan, an ex-student of IMCO Ecode and currently working as a product manager in an NBFC. So, interview seasons for B school admissions are almost over and you will shortly start getting college calls. But एक सेकेंड, किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले कई सारे पैरामीटर्स पे इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. If you are planning to do an MBA and you are currently shortlisting B schools, then this video is very important for you. Because आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वो कौन से सारे important parameters हैं. In this video, I'll share you 4 most important parameters as well as additional 4 important parameters that you should consider before going to any B school. And according to me, the order should be placements, academics, ROI, campus life, plus 4 other parameters. But hey, wait, you have to be with me for next 7-8 minutes so that I can introduce you to all the parameters and you can take a wise decision for yourself. Let's talk about the most important one. First thing, placement. See, when I say it's most important, I'll be very honest. One of the biggest reason people pursue an MBA is to improve their career prospects and salary growth. But here is a mistake many students make. They only consider average package mentioned on the website. That's not enough. Instead, they should actually check the median salary, the placement percentage, the companies that actually visits the campus and the roles that are being offered. Sometimes college advertises a very high average salary, but the reality is only a few students receive those high packages while the majority get much lower. So always try to analyze the full placement report carefully. Look at the quality of recruiter, the type of roles and the consistency of placements over years, because ultimately placements are what you convert your MBA investment into career growth. Second most important thing is academics. A good MBA program should not just give you a degree to show, it should actually tell you how to transform the way you think. MBA education is supposed to help you to develop strategic thinking, business solving problems, business understanding, and leadership capabilities. So, whenever you are evaluating a B school, try to understand who are the faculty members. Does the curriculum actually include case studies and industry exposures? Are there any live projects, internships, and practical learning opportunities associated with those colleges? The stronger the ecosystem, the better prepared you will be for real business challenges and placement. Because companies don't just look for degrees, they look for skill and thinking ability. Here come another important factor, which is ROI, return on investment. Now let's talk about this factor in depth because काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं. MBA आज के टाइम में काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स बन चुका है. टॉप B schools charge even 15, 20, 25 to 30 lakh on entire program. But before moving ahead, let's understand the salary reality in India. A lot of students assume कि MBA करने के बाद सब लोग 25-30 लाख रुपए तो आराम से कमाते हैं. But it's not the reality, my friend. Indian corporate salary distribution is very important factor which I would like to introduce you before moving ahead. Roughly अगर आप Indian dynamics की बात करो corporate salary की, तो 50 to 60% people earn 5 lakh or below. Yes. And around 25 to 30% people earn between 5 to 10 LPA. 10 to 12% people earn between 10 to 15 LPA and just around 4 to 5% earn between 15 to 25 LPA. And guys, less than 1% people in the whole corporate world earns above 25-30 LPA. सो यहाँ यही चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज चूज़ करते वक्त ब्रांड नेम मत देखो, थिंक लाइक एन इन्वेस्टर.
एमबीए का पैसा अरेंज करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, वो 25-30 लाख रुपए का लोन। इट्स रिलेटिवली इजी बिकॉज बैंक्स आर वेरी हैप्पी टू गिव यू एजुकेशन लोन फॉर एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज। बट रिमेंबर वन थिंग, लोन लेना इजी हो सकता है बट उसको वापस भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बिफोर यू आर चूजिंग अ कॉलेज ऑलवेज रिमेंबर टू आस्क योर सेल्फ, मैं जो इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कॉलेज में या कर रही हूँ, क्या मुझे उसका रिटर्न मिल जाएगा? इमेजिन करो अगर आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो एमबीए में और आपको 10-12 लाख की सैलरी मिल रही है, अरे यार लोन रीपेमेंट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर किसी कॉलेज से आपको अच्छा 18-25 लाख का पैकेज मिल रहा है तो आरओआई काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है एंड देन यूल बी एबल टू रीपे योर लोन ऑन टाइम एंड इवन डू मल्टीपल टाइप ऑफ करियर डिसीजंस। हियर कम अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहां फीस रिलेटिवली कम होती है बट प्लेसमेंट स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि एफएमएस, वहाँ आरओआई ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। सो लुकिंग एट योर फाइनेंशियल कंडीशन, योर एबिलिटी, योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज चूज करने से पहले ये फैक्टर कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट अनदर इंपॉर्टेंट इशू स्टूडेंट फेस। इंडिया में ना एमबीए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर अगर अच्छे से आप पढ़ लिख के एमबीए की डिग्री का अच्छे से इस्तेमाल करो तो आपका पूरा करियर ही चेंज हो जाता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ओवरवेलमिंग होता है। क्लासेस, क्लब्स एंड कमिटीज, रिज्यूमे बिल्डिंग, केस कंपटीशन, नेटवर्किंग, एग्जाम्स एंड कम्प्लीटली न्यू करिकुलम। सो ऐसे में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। इसलिए अगर तुम्हें एक फ्री प्री एमबीए गाइड चाहिए जिसमें ये सब अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, गेस्टिमेट्स क्या होते हैं, केस प्रेप क्या होता है, इंटर्नशिप कैसे ढूंढे और सारे कोर सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन हो, तो कमेंट कर दो एमबीए और लिंक मैं तुम्हें रिप्लाई में भेज दूंगी। बाकी अगर तुम सीरियस हो एमबीए को लेकर और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई क्वांटा ने एक प्री एमबीए कोर्स भी लॉन्च किया है। उनका इन्फिनिटी प्रोग्राम चेकआउट करो जहाँ से तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इनिशियली वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, कोर सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट बताएंगे, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क बताएंगे। तो चाहे तुमने किसी भी डोमेन से अपना यूजी किया हो, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और लेटर ऑन इसी में तुम्हें डिटेल्ड पावर पॉइंट और एक्सेल भी सिखाया जाएगा जिससे तुम्हारी रेगुलर मेंटरशिप इंडस्ट्री के लिए भी होती रहेगी। सेकेंड पार्ट में तुम्हें गेस्टिमेट्स और केस प्रेप भी कराया जाएगा जिसमें तुम केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके कैश प्राइज, इंटर्नशिप और इवन पीपीओ भी ले सकते हो। थर्ड और फोर्थ पार्ट में तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू और ऑफ एंड ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी में कैसे स्कोर करें ये भी सिखाया जाएगा। इस कोर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और उस फ्री गाइड के लिए तो गाइज कमेंट कर दो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। कमिंग टू द फोर्थ important factor which is campus life. MBA is not just about classes and exams here. In fact, a huge part of MBA learning comes outside the classroom. Campus life actually involves multiple things like student club and committee, competition and events, networking with peer, cultural activities, or leadership opportunities. Because the people you study with, you live with, will become your future network, which can extremely be valuable in your career. A vibrant campus environment also helps you to develop confidence, team skills, leadership abilities. So while placement and academics are critical, कैंपस कल्चर ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग योर MBA एक्सपीरियंस। तो मैं एक बात बताऊँ, आई गॉट मल्टीपल लवली पीपल इन द कैंपस जिन्होंने मुझे ना सिर्फ अकेडमिक्स में मदद किया बल्कि मेरी प्लेसमेंट प्रेप में भी मदद किया। सो आई थिंक दिस इज अ कम्प्लीटली नॉन निगोशिएबल फैक्टर। जो ये तो बात हुई बेसिक 4 पैरामीटर्स की जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोनस वंस। अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो मैं आपको 4 और स्मार्ट फैक्टर्स बता देती हूँ जो कोई भी सीरियस MBA स्टूडेंट जरूर चेक करता है। ये फैक्टर्स इतने ऑब्वियस नहीं होते लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज एल्यूमिनाई नेटवर्क। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, MBA एक्चुअली 2 साल की डिग्री नहीं होती, ये एक लाइफ टाइम नेटवर्किंग होता है। आपके सीनियर एल्यूमिनाई फ्यूचर में डिफरेंट कंपनीज में होंगे, कंसल्टिंग फर्म, स्टार्टअप्स, MNCs, प्रोडक्ट कंपनीज, एंड बिलीव मी रेफरल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बार एल्यूमिनाई नेटवर्क से ही काम में आती हैं। अगर किसी कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो वो कॉलेज लॉन्ग टर्म में करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसलिए ट्राई करो ये चेक करने का कि एल्यूमिनाइज कौन कौन सी फर्म में है, लिंक्डइन पर उनकी प्रेजेंस कैसी है और क्या एल्यूमिनाइज जेन्युइनली जूनियर्स की हेल्प कर रहे हैं प्लेसमेंट में। ये आप स्टूडेंट से बात करके भी समझ सकते हो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैच साइज। देखो यार,
करंटली मार्केट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। एआई के आने से बहुत सारी चीज़ें, द वर्क एनवायरनमेंट एज वेल एज वर्किंग कल्चर इज चेंजिंग। जॉब रोल्स में भी काफ़ी चेंज हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर आपके कॉलेज में 800 स्टूडेंट का बैच है ना, तो प्लेसमेंट के टाइम पे कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका बैच साइज ही बैलेंस्ड है तो चांसेस होते हैं कि रिक्रूटर बेटर एक्सेस कर सके आपको, स्टूडेंट को ज़्यादा लीडरशिप रोल मिले और प्लेसमेंट थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड हो। इसलिए जब भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो, बैच साइज ज़रूर देखना। Coming to the third smart factor which you should consider, roles and domains that are being offered. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सैलरी देखते हैं बट एक्चुअली रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैलरी से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कॉलेजेस में कंसल्टिंग के फर्म्स बहुत सारे आते हैं, सो वो कंसल्टिंग के लिए फेमस है। कुछ फाइनेंस रोल्स के लिए फेमस है, कुछ प्रोडक्ट और टेक रोल के लिए भी फेमस है। आपको ये समझना है कि क्या ये कॉलेज मुझे उस डोमेन में उस अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर दे पाएगा जिस तरफ मुझे करियर बनाना है। सैलरी तो टाइम के साथ ग्रो हो जाती है बट रॉन्ग डोमेन चूज कर लिया तो स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कॉलेज कंसीडर करते वक्त ये फैक्टर देखना मत भूलना। इट्स टाइम टू टेल यू द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, द एडवांटेज ऑफ लोकेशन। अब ये प्राइमरी फैक्टर तो नहीं है बट समटाइम्स इट हेल्प्स। अगर आपका कॉलेज कॉर्पोरेट हब्स के आसपास है लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, तो कभी कभी फिजिकल गेस्ट लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं रादर देन ऑनलाइन मोड। लाइव प्रोजेक्ट्स इजीली मिल जाते हैं और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी थोड़ा बेटर होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, लोकेशन कभी भी प्लेसमेंट्स या एकेडमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना हो सकता है। ये सिर्फ एक एडिशनल एडवांटेज हो सकता है। Now concluding this video, I would like to highlight primary factors, प्लेसमेंट, एकेडमिक्स, ROI और कैंपस लाइफ होते हैं। बट अगर आप स्मार्टली वैल्यूएट करते हो तो एलुमनाई नेटवर्क, बैच साइज, रोल्स जो प्लेसमेंट में ऑफर किए जाते हैं और लोकेशन भी, ये देखना मत भूलना। सो टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट कॉलेज कॉल्स, एक शीट बनाओ, ये सारे पैरामीटर्स लिखो एंड स्टार्ट नंबरिंग देम आउट ऑफ 10, ताकि आप इजीली वैल्यूएट करके अपने लिए राइट बी स्कूल का डिसीजन ले सको। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ मैं जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ यू कैन फाइनेंस इजीली योर MBA डिग्री थ्रू बैंक्स एंड लोन्स विथ मिनिमम इंटरेस्ट, तो वो भी मैं बना दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस रियली हेल्पफुल। ऑल द वेरी बेस्ट।